The Replanet, an initiative by the Times of India in association with Coca-Cola India and knowledge partner Climate Trends, explores how circularity can reshape our future. The event opened with a welcome address by Mr. Vishwa Mohan, Editor Environment at the Times of India. It is a privilege to extend a warm welcome to you all this evening. We are deeply honored that Sir is here, and despite his demanding schedule, to accept the invitation and join us today. So thank you very much for this. And Sir, your presence here is a testament to the government's commitment to fostering sustainable practices and championing environmental responsibility. And you have been very forthcoming about all these issues. Over the last 3 years, we have been seeing it. And I think we must appreciate your leadership in driving change in the realm of waste management and circularity. How can we forget that you led it first by banning single-use plastic, then you were instrumental in notifying the EPR that make it mandatory, obligatory for producers, manufacturers to manage the waste. Sir, your ongoing efforts in carrying forward Prime Minister Narendra Modi's mantras of Mission Life and Ek Ped Maa Ke Naam will go a long way in driving the country towards sustainability and environmental practices. So we are very thankful to you for this, and you have always supported us towards this when we launched this campaign 2 years ago through your insightful conversation with us, and you gave a detailed interview how you are going to do it, and you did it. So we are very thankful to this. As part of our Replanet initiative, when we have launched this campaign, I read somewhere, and I do strongly believe that waste is actually a misnomer. It actually displays resources. Just add economic value to it and see the miracle all around us. So, and in fact, you have also been propagating it when you talks about life, mission life, and how to reduce that waste. And you have always propagated that. So once again, thank you all for being here. We look forward to an insightful and impactful evening ahead. And coincidentally, today is the World Thinking Day. So whatever you say, we will think over it and try to carry this forward. This was followed with a special address by Aarti Khosla, Director Climate Trends. The only way Replanet happens is by reducing, recycling, and remanufacturing. There is no plan B because there is no planet B. So therefore, just the word Replanet itself comes with a loaded meaning that we don't have another planet, and whatever has to happen in terms of a churn right here and right now. Our organization, as a knowledge partner with the Times of India and Coke, has been able to bring in some thinking on where is it that we are able to do more in terms of educating and building awareness on circularity issues. This was followed by an address by Union Minister Bhupendra Yadav, Environment Minister, Government of India, envisioning a circular economy shaping a sustainable waste-free India. मैं एक लंबे समय से टाइम्स ऑफ इंडिया का रीडर रहा हूँ। मेरे से किसी ने पूछा कि आपको टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों अखबार के रूप में पसंद है। मैंने कहा 4 कारण हैं। शुरू से ही मैं अभी दिवाकर जी को भी कह रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया एक ऐसा अखबार रहा है जिसका फोकस हमेशा एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पे रहा है। ये पहला कारण है। दूसरा, हमेशा से ही टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ के जो आपका विजडम वाला आर्टिकल है स्पीकिंग ट्री, मैं भी उसमें लिखता रहा हूँ, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज खोल के उसको पढ़ने की इच्छा रहती है। तीसरा, आपका जो एडिटोरियल है हमेशा इंसाइटफुल रहता है। और चौथा, आपका वाइब्रेंट पेज तो पेज 3 है ही। तो ये चारों चीज़ें मिला के तो ये जो सारी दुनिया है ये बहुत वाइब्रेंट है। अभी खोसला जी बोल रही थी यहाँ पे, तो मैं ये देख रहा था कि ये कमरा कभी खाली होगा तो इसमें से कम
200 किलो प्लास्टिक तो निकलेगा, और वो तो जब खाली होगा तब निकलेगा, लेकिन जितने भी बोर्ड निकले वो तो कल ही निकलेंगे। तो जो वाइब्रेंट लाइफ है फेज़ 3, उसमें हमारा इंसाइटफुल एटीट्यूड कैसा हो, और जो अभी संचालक भी कह रहे थे, मेरे से पहले भी जो सेट कर रहे थे, कि दुनिया में सबकी आवश्यकताओं के लिए तो चीज़ें हैं, लेकिन ग्रीड के लिए नहीं है। तो हमारी विजडम कैसे काम करे और एनवायरनमेंट कॉन्शियस कैसे हो, ये चारों चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जिस संसार में हम लगातार तरक्की कर रहे हैं, अमर तो कोई नहीं होता है संसार में, सब एक दूसरे को बैटन दे के आगे जाते हैं। लेकिन पिछले 200-300 साल की जो हमारी तरक्की हुई है, उसमें जैसा अभी पहले भी बताया है कि इस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमने एनर्जी में बहुत एडवांस तरक्की करी है, और सब चीज़ें एनर्जी बेस है। आपके घर के लाइट से लेकर, आपके एरोप्लेन के सफ़र से लेकर, और स्पेस में जाने से लेकर, बिना एनर्जी के कुछ हो ही नहीं सकता है। पर दुनिया में जितना एनर्जी का प्रोडक्शन है, उतना ही एमिशंस का है। इसलिए जो प्रेजेंटेशन में भी दिखा रहे थे कि 75% एमिशन सिटीज़ से होता है, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होता है, और कोई रीज़न ही नहीं है। जो दुनिया में डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ की बातचीत चलती है, तब यही कहा जाता है कि आपने ज़्यादा तरक्की करी है, मतलब आपने हिस्टोरिकल एमिशन ज़्यादा किया है, एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा किया है। दूसरा विषय है कि जो हमारा बायोडायवर्सिटी का सिस्टम है, जितना हम पेस्टिसाइड को यूज़ करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी उतने ही आते हैं। और हमारी अर्बन प्लानिंग में जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये कंजम्पशन बेस्ड स्ट्रक्चर है, और इसलिए मोर प्रोडक्शन का अर्थ है मोर गार्बेज का इकट्ठा होना। अब ये हमारे सामने चुनौती है। चुनौती में से अवसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में जो प्रोडक्शन का साइज़ हो गया है, जो एनर्जी कंजम्पशन का तरीका हो गया है, जो अर्बन प्लानिंग हो गई है, उसमें से रास्ता तो निकालना पड़ेगा ही। और मैं कई बार कहता हूँ कि दुनिया में 2 तरह के लोग अक्सर पाए जाते हैं। मैं एनवायरनमेंट की जब डिबेट सुनता हूँ और बड़े विद्वान लोगों से मिलता हूँ, दिवाकर जी, या तो कैटेस्ट्रोफिक होते हैं, जो कहते हैं सब कुछ ही ख़राब हो गया है, या टेक्नो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, जो कहते हैं टेक्नोलॉजी से सब ठीक कर देंगे। रास्ता इसके बीच का है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वो है मिशन लाइफ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। एक अनुमान में माना जाता है कि लगभग हमारे देश में 62 मिलियन टन ऑफ वेस्ट हम एनुअली अब निकालने लगे हैं, और ये हर तरह का वेस्ट है। ये प्लास्टिक का भी वेस्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक का भी वेस्ट है, और ये जैसा कि अभी बताया गया प्रेजेंटेशन में, हजारडस वेस्ट भी है, जो हमारे पूरे सिटीज़ में लगातार एक कई जगहों पे तो बड़ा इसका वेस्ट का डंप बनता है। और इसके लिए हमको कुछ विषयों पे आगे जाना पड़ेगा, जो है सर्कुलरिटी विद सस्टेनेबिलिटी। सर्कुलर इकोनॉमी को या सर्कुलर प्रोडक्ट्स को हमारे मंत्रालय के द्वारा, यहाँ हमारे लीना नंदन जी बैठी हैं, उन्होंने लंबे 2 साल मेरे साथ एज ए सेक्रेटरी भी काम किया, और विगत 2 सालों में हमने जिस क्षेत्र में रूल्स की आवश्यकता थी, उसको एज ए नोडल एजेंट मिनिस्ट्री के नाते हमने सभी क्षेत्रों में, यूज्ड ऑयल का विषय हो या बाकी विषय हो, उनको निकालने का प्रयास किया। बट सर्कुलरिटी विद सस्टेनेबिलिटी के साथ सस्टेनेबिलिटी विद इको फ्रेंडलीनेस, और इको फ्रेंडलीनेस विद बीइंग ग्रीन। तो फिर वो आपको एनर्जी प्रोडक्शन में रिन्यूएबल पे जाने की आवश्यकता हो, ग्रीन एनर्जी पे जाने की आवश्यकता हो, नई टेक्नोलॉजी पे जाने की आवश्यकता हो, वो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन
का जो एक दौर पूरे दुनिया में चला था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, ये तो है ही कि हमने मास लेवल पे प्रोडक्शन करें, ताकि मास लेवल पे प्रोडक्शन चीप भी होगा और सिंगल यूज़ प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लेगा भी। बट ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है, अब इसको हम उस मास प्रोडक्शन से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पहला जो दौर आया था उसमें तो लीनियर इकोनॉमी थी। मास प्रोडक्शन का अर्थ था टेक, मेक, यूज़ और वेस्ट। तो हमारी जितना भी चीज़ें पैदा हुई आप ले बनाओ, प्रयोग करो और फेंक दो। पर ये फेंकने का इतना बड़ा कचरा खड़ा होना शुरू हो गया कि हम लीनियर इकोनॉमी से रिसाइकल इकोनॉमी की ओर गए। उसमें टेक, मेक, यूज़ के साथ अगेन उसको रिसाइकिल करके बनाने का काम करो वेस्ट से पहले, और एक रिसाइकलिंग इकोनॉमी का दौर पूरे दुनिया में खड़ा हुआ है। आज जिस सर्कुलर इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं और जो ईपीआर रूल्स हमारे आए हैं, वो अगर देखेंगे तो टेक, मेक, यूज़ के बाद रिटर्न करो, ये जो लायबिलिटी है, अब इसमें जिम्मेदारी को भी जोड़ा है कि आप वापस से कलेक्ट करिए। अब केवल रिसाइकल नहीं है, अब रिटर्न करके वापस से बनाइए या रिसाइकिल करिए या रिपेयर और रीयूज़ करिए। एक आज तो देश को बहुत बड़ा गर्व है कि हमारे सबके पास मोबाइल है। एक मोबाइल के अंदर से कम 10-15 चीज़ें निकलती हैं। तो जो सर्कुलरिटी का जो सबसे बड़ा इशू है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका डिज़ाइन किस प्रकार से हो, वो सबसे बड़ा महत्व करेगा, तभी हम उसको वापस से रिटर्न कर पाएंगे। दूसरा, हमेशा नेचर से सीखना चाहिए। इस नेचर का इतना बड़ा प्रभाव है कि धरती पे आज भी इंसान से ज़्यादा नेचर ही प्रोडक्शन करती है। आप जितना भी प्रोडक्शन करें, पर जितना फ्रूट का प्रोडक्शन है वो तो नेचर से ही आता है, जितना अनाज का प्रोडक्शन है वो तो नेचर से ही आता है, जितना फॉसिल फ्यूल है वो तो नेचर से आता है। इंसान निकालता ज़रूर है। जितना आपका पूरा समुद्र से फिशिंग आता है वो तो नेचर से आता है, इंसान नहीं बनाता है। लेकिन नेचर की कोई भी चीज़ कभी गार्बेज पैदा नहीं करती। अगर कोई फल पक्षी भी खाएगा, आधा गिरेगा तो नीचे वो खादी बनेगा, वो परमानेंट प्लास्टिक की तरह सड़ेगा नहीं, और भी कुछ नहीं होगा तो फॉसिल फ्यूल ही बनेगा। तो नेचर का ज़ीरो एमिशन है प्रोडक्शन का। सर्कुलर इकोनॉमी का अर्थ ये है कि हम नेचर से प्रेरणा लेके अपने को ऐसा डिज़ाइन करें कि वो ज़ीरो एमिशन की ओर जाने का प्रयत्न करे। यही सिंपल सा नेट जीरो का प्रिंसिपल है। और इसलिए हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम शेयर कैसे करें और इंडिविजुअली इनको कम से कम एक्सप्लॉइट करें, इसके लिए एक लाइफस्टाइल का बनना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए केवल इकोनॉमिक सर्वे जो इस बार हमारे देश का आया था उसकी कुछ बातें संक्षेप में कहूँगा। पहला, पॉलिसी मैटर तो बड़े हैं, सरकारों के द्वारा लिए जाते हैं, वो मिटिगेशन मेजर्स हैं, लेकिन आम सोसाइटी में एडेप्टेशन प्रैक्टिसेस होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए इस बार के जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2025 है उसमें कहा गया है कि हमारे देश का जो एडेप्टेशन का एक्सपेंडिचर है वो 3.7% से 5.6% जीडीपी के बिटवीन बढ़ा है। तो हमारा एक अप्रोच बढ़ा है एडेप्टेशन को लेकर के। दूसरा, मिशन लाइफ है। हमारे इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया कि मिशन लाइफ का जो इनिशिएटिव है वो एक तरीके से प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है वो सस्टेनेबल प्रैक्टिस और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करता है, और जिसको हमें लगभग एक मिशन के नाते 80% गाँव तक पहुंचाने का काम करना होगा। फिर भारत सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे पीएम कुसुम योजना है, हमारे जो जनरेटर के पंप बदले जा रहे हैं, या पीएम सूर्य घर योजना है कि हर घर को हम रिन्यूएबल एनर्जी के आधार पर एक निश्चित मात्रा में बिजली उपलब्ध कराएंगे। ये सरकार की बहुत बड़ी योजना है एनर्जी सेव करने की।
या गो इलेक्ट्रिक कैंपेन है या फॉसिल फ्यूल पे हाई एक्साइज ड्यूटी है या मार्केट बेस्ड इंसेंटिव है कि परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम है, ये भारत सरकार की ऐसी योजना है जो सर्कुलरिटी को बढ़ावा देती है। एनर्जी सेक्टर में भी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो भी रिन्यूएबल नए कैपेसिटी को बढ़ाने का जिसमें लक्ष्य तय किया गया है और ये तय किया गया है कि इसका पोटेंशियल 50 मिलियन मैट्रिक टन CO2 एनुअल एमिशन ये 2030 तक करने का तय किया। उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा योजना उसको भी बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया और भारत ने दुनिया में जो अपने NDCs के लक्ष्य दिए हैं उसमें जो नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी है आज तो हमारी 46.8% टोटल कैपेसिटी हो गई है, लेकिन भारत ने 2030 तक ये जो लक्ष्य निर्धारित किया है ये अपना 50% योजना का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। This was followed by concluding remarks by Rohan Mishra, Senior Director, Coca-Cola India. Your leadership in driving India's environmental policies, from advancing circular economy principles to strengthening waste management frameworks, continues to shape a sustainable future for our country. The initiative led under your guidance, including efforts to combat plastic pollution and enhance water conservation, serve as an inspiration to organizations, industries, and individuals alike. Your address today, sir, has also reinforced the urgent and expedient need for collaborative action, and I think this is where industry, academia, government, civil society need to come together to really make a difference for not our generation but for the future generations. I would also like to deeply acknowledge the support provided by Climate Trends and by the Times of India Group, which is what we believe is a first of its kind initiative in putting together a compendium all-encompassing on circularity across different domains. And we really hope, as an industry which is actively involved in pursuit of the subject, that we will be able to enact some of these guidances into regulations and policy. Sir, I would also like to take this moment, and I'm not sure that everybody would be aware, that today India should be proud that we really recycle at least 80 to 90% of our PET, which is much higher than what happens in the Western countries. This is a template that India can set for the rest of the world. And I feel very happy that the Honorable Minister mentioned the EPR, where we will be able to effectively reuse one bottle to make a new bottle, which I think is the step in the right direction in India in the future. It would also be remiss of me not to say of some of the work that we have done on ground, and I would like to apprise the Honorable Minister that recently, as one of the largest partners of the Mahakumbh, we were able to repurpose PET bottles and 21,500 jackets for sanitation workers on ground. We were also able to use plastic to create 1,000 changing rooms for women alongside the ghat. So where we are trying to focus is, we definitely think there is wealth in the waste, and if the industry was to come together in partnership with the government and tremendous partners like Climate Change and the others, I think an all-encompassing approach would really take India into an accelerated position as compared to the other countries. And as an industry, we stand committed. And I always say this, that this is really the message of doing well by doing good. And I think the Coca-Cola company stands very strongly for that. And we are happy to work in collaboration with you and make sure that we make a difference on ground. I think it's an excellent initiative, because ultimately sensitizing all people and doing a lot of advocacy and awareness is the way that behavioral changes will happen, is the way that people will start practicing and exercising eco-friendly choices. And seeing this queue, our industries that produce goods and services will also make sure that circularity is embedded in the value chain. So I think this is a very good way of keeping the issue of circularity alive, and it brings a lot of knowledge and information to all those who are involved in these programs that have been organized through the aegis of Replanet. We found that we have to see that the water which is used at our houses for sewage, for toilet purposes and for bathing purposes can be recycled with minimum effort, and that can be used for
non-potable purposes like for irrigation and for industrial use. This will help in reducing the abstraction of good water, which we are doing so far. So a very comprehensive plan of reducing the water usage or reusing the water and probably recycling the water to ensure that sufficient good quantity of water is left for the next generation is taking place now. The Replanet, an initiative by the Times of India in association with Coca-Cola India and knowledge partner Climate Trends, culminated on high-voltage discussions, pride and a sense of achievement. Though the curtains came down, but the search for excellence by the Times Group will go on.